Assalamualaikum grade 4. I hope you are fine and you're doing well. Today we will revise our Nazra work. We have some supplications, surahs, and we will discuss more about our Nazra work, but today we will not discuss any chapter or topic. Let's start our work. Come to page number 8. We have 4 supplications, but in our syllabus we have supplication number 3 and 4. We have already read them in our class. We'll do them again because these are included in your final term syllabus also. We have supplication number 3. When something is accomplished as per your wish, recite the following supplication. वो कह रहे हैं कि ये सप्लीकेशन किस लिए है, जब कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होती है, कोई चीज़ आप जो अल्लाह से मांगते हैं वही आपको मिल जाती है, तो हम अल्लाह ताला के थैंक्स के लिए, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करने के लिए हम कौन सी दुआ पढ़ते हैं. रिसाइट सप्लीकेशन नंबर 3. रिसाइट विद मी. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही Tatimmus Salihat. Okay, next we have supplication number 4. In order to improve and strengthen your memory, recite the following supplication. आप सब ने ये अपने बचपन से सुना होगा कि अगर आपने अपना हाफिज़ा तेज़ करना है, आपने अपनी मेमोरी तेज़ करनी है, you have to sharpen your memory. If you want to sharpen your memory, you should recite this supplication. We have Rabbi shrah li sadri. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay, now we'll recite it again. Alhamdulillah. This is not alham, it's alham. आपने हा की आवाज़ निकालनी है, हा की आवाज़ नहीं निकालनी है. This is Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus salihat. Again, hat. It's not hat, it's hat. Are you listening me? Hat. Alhamdulillahillazi bini'amatihi tatimmus salihat. Rabbi ishrah li sadri वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Okay, this is your supplications. Now we will do some surahs. Come to page number 7. We have Surah An-Nasr and Surah Al-Fil in our syllabus. Surah An-Nasr means help. Bismillahir Rahmanir Rahim. We have a mad on ja. You have to remember when you recite this. Iza jaa nasrullahi wal fath ara'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Okay, आपने इसको याद करना है.
अच्छी तरह से पूरे इसकी ज़ेर ज़बर और इसकी मद को याद रखा है, कहाँ पे गुन्ना है कहाँ पे नहीं है, ये सब आपने बातें ख्याल रखनी है। और इसको शुरू करने से पहले यू हैव टू रिसाइट बिस्मिल्लाह एंड ताऊज़ ऑल्सो। नाउ वी हैव सूरा अल-फील एंड अल-फील मीन्स एलिफेंट। अल-फील मीन्स एलिफेंट। जब हम पिछले क्लास में थे तो वन ऑफ द स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि कौन था, आई थिंक अब्दुल्ला, यस अब्दुल्ला मुझे कह रहा था कि सूरह अल-फील का आप हमें वो सारा वाक़या सुनाएं। तो आई थिंक हमने ये पढ़ा था, हमारे चैप्टर्स में था सूरह अल-फील का, जो हमने अब्राहा वाला पढ़ा था चैप्टर, रिमेंबर अब्राहा एंड हिज आर्मी। वो सारा वाक़या जो हमने पढ़ा था क्लास में, वो सारा सूरह अल-फील में जो वाक़या था वो था। मेरा ख़्याल है अब्दुल्ला को समझ आ गई होगी कि क्या था वाक़या। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। Okay, this is Surah An-Nas and Surah Al-Fil. This is your today's task. You have to learn both of the surahs and both supplications, and I am giving you a task. You have to do that also. And your task is on page number 34. Come on page number 34. We have Prophet Hazrat Ayyub alayhi salam. Inshallah, in our next video we will read this chapter and do the exercise of this chapter also. But first your task is to read this page number 34, 35 and 36 we have. You have to read this and you have to underline the difficult words and आपको इस सारे की जो स्टोरी है जो इसमें बता रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको बताऊं तो आपको पता हो कि टीचर क्या बता रही हैं। ओके, Inshallah we will do this chapter in our next video, in the next video, and then we will do the exercise also. Let's read, थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं नहीं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे। ओके, Hazrat Ayyub was a very grateful and obedient messenger of Allah Almighty, the Almighty Allah, who had given him many blessings. He owned thousands of servants and cattle. He had innumerable fields, gardens, and orchards, and he was the chieftain of his tribe. He was extraordinarily generous and used to help the poor open-heartedly. He ﷺ taught his people about Allah and forbade them to worship idols. वो हमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही फरमाबरदार मैसेंजर थे और बहुत ही उनके ग्रेटफुल थे अल्लाह ताला के, और अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग से नवाजा था, बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। बहुत हज़ारों की तादाद में उनके पास नौकर थे, सर्वेंट्स थे, और बहुत सारे उनके पास कैटल थे, भेड़ बकरियाँ जो भी आप कहें, शीप्स वगैरह वो सब थे उनके पास। इननंबरेबल गिनती तादाद ला तादाद उनके पास खेत थे, उनके पास गार्डन्स थे, ऑर्चर्ड्स थे, उनके पास बहुत सारा कुछ था, और वो अपने कबीले के सरदार भी थे। ही वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेनरस थे, और वो क्या करते थे, जो गरीब लोगों की उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते थे ओपन हार्टेडली। और वो लोगों को इसके साथ साथ ये भी बताते थे कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला की बात मानो, अल्लाह ताला की इबादत करो, और फॉरबेड देम टू वर्शिप आइडल्स, उनको मना करते थे कि फॉरबेड क्या करते थे, मना करते थे कि क्या करो, कि बुतों की पूजा ना करो। This is so beautiful, right? Okay. Due to this, even the angels admired him. इसी वजह से कि वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के ग्रेटफुल थे, बहुत ज़्यादा एहसानमंद थे और अल्लाह ताला की बहुत इबादत करते थे। तो जो शैतान कह रही हूँ सॉरी, जो फरिश्ते थे वो भी उनकी तारीफ़ करते थे। वन डे दे वर प्रेजिंग हिज अडोरिंग वर्शिप ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी हिज ओबीडियंस व्हेन द डेविल ओवरहेड देम। जब एक दिन फरिश्ते बैठकर अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहे थे कि वो अल्लाह ताला के बहुत अच्छे और बहुत शुक्रगुजार बंदे हैं, तो शैतान आया और उसने ये सब सुना। तो उसने क्या कहा, ही वो फाउंड इट अनबेरेबल, और उसने ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, एंड सेड दैट हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वाज ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी एंड वर्शिप हिम कॉन्स्टेंटली ओनली बिकॉज ही हैड ब्लेस्ड हिम विद इननंबरेबल गिफ्ट्स। शैतान ने कहा, शैतान तो अज़ली आपको पता है हमारा दुश्मन है, उसने कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत इसलिए करते हैं, इतने अच्छे काम इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारा कुछ नवाजा है। अल्लाह ताला ने उनको लादादा चीज़ों से और लादादा तोहफ़ों से नवाजा है। दैट्स वाई वो अल्लाह ताला की इतनी इबादत करते हैं। If all these were snatched away from him and he had to face trials and tribulations, or he would never worship him. कह रहे हैं कि अगर ये सब उनसे छीन लिया जाए और उनको ज़िंदगी की मुश्किलात और उनका सामना करना पड़े तो वो ये सब कभी ना करें। Allah the Almighty had determined to set an example of the patience of the and obedience of Hazrat Ayyub alayhi salam for all mankind. फिर अल्लाह ने क्या चाहते थे कि वह एक एग्जाम्पल, एक मिसाल हम जैसे लोगों के लिए दिखाना चाहते थे कि अल्लाह ताला जिसको देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तभी वो अल्लाह की इबादत करता है। हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम ने जब ये सब चला गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनसे एक पता है मिसाल बनानी थी, तो अल्लाह ताला ने उनसे सब कुछ दे था। वी विल डिस्कस फर्दर, हम आगे पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने ये मिसाल ये सेट करनी थी कि लोग ये कहें कि अल्लाह दे या ना दे फिर भी हम अल्लाह ताला की इबादत करें। सो हिज स्टेटस एंड वेल्थ बिगेन टू वर्जन एंड डिटेरियोरेट। इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अजीब सा वर्ड है, डिटेरियोरेट। ओके, मैंने ये आपको पढ़ा दिया है। नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रीड द पेज नंबर 35 एंड पेज नंबर 36. We will do inshallah in our next video the exercise of this chapter also. Now your task of today is to learn the Nazra and to read this chapter. Inshallah we will discuss further in our next video. Okay, take good care of yourself and your family. Allah Hafiz.